So thank you all, dear devotees, for joining today. It's extremely fortunate we have with us His Grace Krishna Bhakta Prabhu. Many of you know Krishna Bhakta Prabhu is a disciple of, senior disciple of His Holiness Lokanath Swami Maharaj. Prabhuji is having lots of very key projects to this handling, very prominent ones, significantly. So now there is a temple is coming up in ISKCON Pandharpur. It's a huge project. So Prabhuji is the main person to support that temple. So he mentioned before that, let's welcome Prabhuji saying Haribol 3 times from our bottom of our heart. Haribol, Haribol, Haribol. So there are so many of glorifications. Few, I just read it out. His Grace Krishna Bhakta Prabhu is a dedicated brahmachari and the temple person of ISKCON Solapur. With his unwavering commitment to spiritual growth and community development, he has been serving as a zonal supervisor for Maharashtra, guiding and inspiring devotees across the region. Prabhuji oversees the management and spiritual activities of the ISKCON Solapur temple, ensuring that the teaching of Srila Prabhupada are upheld in every aspect of temple life. Prabhuji is responsible for organizing festivals, daily worship, and community outreach. He is a zonal supervisor, oversees the development of ISKCON centers across the Maharashtra, providing guidance and support to temple leaders. His supervision ensures a harmonious environment for spiritual practice and growth throughout the region. So Prabhuji is very scholarly, very well versed with the scriptures, and so many years Prabhuji was with the Brahmachari Ashram. We could hear a couple of classes. How many of you heard Prabhuji's classes before? Last year, this year? Yes, many of you. It's an amazing classes. So thank you so much. Again, let's welcome Prabhuji saying Haribol 3 times. Haribol, Haribol, Haribol. And also let's welcome all of you. Anybody is here for the first time? Anybody is here for the first time? Okay. You are here for the first time now. Bhakti Rishabh first time. Yes, that's what is meant for. Yes, that's what it is. So this is Dhananjaya Krishna Prabhu and Jai Draupadi Mataji, disciple of His Holiness Lokanath Swami Maharaj, my Guru Maharaj, and they are doing wonderful service in Bergen County. They are bringing up a temple, so they are planning to bring a temple over there, and it's such a instrumental for all this wonderful yatra on Bergen County, and they are very instrumental for all the yatras and the devotees there. So let's also welcome His Grace Dhananjaya Krishna Prabhu and Jai Draupadi Mataji saying Haribol 3 times. Haribol, Haribol, Haribol. Not last, not but the least, our dear Sringaramurthy Prabhu, many of you know. Prabhuji is just moved to the side of Canada, but Prabhuji was with me in the Vrindavan last year in Pandharpur. Wonderful soul, always serving the Krishna, always serving the devotees with this very humble mode. So it's very fortunate to have Prabhuji also here with us. Let's also welcome Prabhuji saying Haribol 3 times. Haribol, Haribol, Haribol. So thank you so much. Let's first approach Hare Krishna. You want to hear from English, Hindi? Hindi. We love you. Or Hindi. Marathi? Oh, Hindi. Marathi only two. Hare Krishna. Kartal mein? Yeah. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja
की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कैंडल पार्क भक्ति वृक्ष। तो सभी भक्तों का स्वागत है। सभी ने आदेश दिया हिंदी में बोलने के लिए और प्रयास करेंगे। तो प्रभु जी ने जैसे बताया, हम लास्ट सैटरडे ही जब वल्लभाचार्य प्रभु के घर पे जब हम सत्संग किए तो वहाँ पर आदेश मिला कि जो वैष्णव अपराध होता है हमसे, वैसे वैष्णव अपराध टॉपिक इज वेरी वास्ट, फिर भी ये वैष्णव अपराध क्या है या वैष्णव अपराध के कितने प्रकार है, कैसे हमारे से वैष्णव अपराध हो सकता है, ये हमें पता होना भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ हम सुनते हैं वैष्णव अपराध मतलब वैष्णवों की निंदा करना या वैष्णवों के विषय में कुछ गलत शब्दों का उपयोग करना या वैष्णवों के लिए बड़ा अच्छा कहना या उनके लिए गलत शब्दों का, गलत वाक्यों का उपयोग करना, उनके पीठ पीछे उनकी निंदा करना, तो इसको वैष्णव अपराध कहा गया है। जैसे रथ यात्रा पीरियड चल रहा है, रथ यात्रा सीजन, स्नान यात्रा हुई, अभी रथ यात्राएं अलग अलग स्थानों पर, जैसे कल न्यूयॉर्क में, फिर पार्सिपेनी में, अलग अलग स्थानों पर रथ यात्राएं प्रारंभ होगी। तो एक कुलीन ग्राम एक स्थान है, कुलीन ग्राम बंगाल में, और वहां से कई सारे गृहस्थ भक्त चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आते थे और विशेष रूप से जगन्नाथ रथ यात्रा अटेंड करने के लिए। और इन सभी का नियम था कि 4 महीने चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना है। 8 महीने घर गृहस्थी जॉब, 4 महीने चैतन्य महाप्रभु के साथ, स्टैंडर्ड टाइम। हम सभी को सिखाने के लिए, कैसे नहीं कि हम पूरा 12 महीने 24 घंटे सिर्फ यही करते रहे। जैसे प्रभु जी के साथ में चर्चा कर रहा था कि कब प्रभु जी निकले बाहर, या हमेशा यही करते रहे, कब हम बाहर निकलेंगे। तो फिर ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के द्वारा या चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के द्वारा हमें सिखाया गया है। तो जैसे चातुर्मास प्रारंभ होता है, जैसे आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक। अभी आषाढ़ महीने में जब रथ यात्रा होगी तो रथ यात्रा से ये चातुर्मास प्रारंभ होगा और कार्तिक तक ये चलेगा चातुर्मास। और चातुर्मास में सारे कुलीन ग्राम के भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहते। तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को सेवा दी थी कि हर वर्ष जगन्नाथ जी के लिए एक नए पिलो बनाने हैं, बड़े बड़े पिलो, तकिया और रेशम की रस्सी बनानी है, जिससे जगन्नाथ को उठाने के लिए, जगन्नाथ जी को बांध कर, क्योंकि इतने बड़े विग्रह तो एक साथ तो उठा नहीं सकते। और इस उत्सव को पहंडी उत्सव कहा जाता है। पहंडी, जगन्नाथ जी को मंदिर से बाहर लाकर रथ के ऊपर बैठाना, इसको कहते हैं पहंडी उत्सव। आपने देखा होगा कि जगन्नाथ जी को बहुत बड़ा मुकुट लगाया जाता है और पूरा ऐसे हिलते रहता है मुकुट पूरा। तो ये पहंडी उत्सव के समय में जगन्नाथ जी को जब उठाते मंदिर से, ऑल्टर के अंदर से उठा के अलग अलग स्थानों पर थोड़े थोड़े समय पर रखा जाता है।
क्योंकि एक ही साथ उठाकर रथ के ऊपर नहीं रख सकते, तो बीच में ब्रेक लेते हैं पंडास पुजारी। तो तकिया जब भी जगन्नाथ जी को नीचे तो जमीन के ऊपर नहीं रख सकते, तो तकिए के ऊपर जगन्नाथ जी को रखते, फिर धीरे 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 3-4 बार रखने के बाद फिर रथ के ऊपर। तो हर बार जैसे ही जगन्नाथ जी को इस तकिए के ऊपर रखते तो तकिया फूट जाता पूरी तरह से, और उसका सारा कपास उसके अंदर पूरा निकल जाता था। तो ये हर वर्ष नई सेवा या नए बनाने पड़ते थे हर वर्ष। और रस्सी किसके लिए? जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर बांधने के लिए, क्योंकि जगन्नाथ रथ के ऊपर हिले नहीं, इसीलिए। कभी कभी भक्तों का आनंद देखकर जगन्नाथ भी फिर नृत्य करने लगते हैं। तो जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर एज अ सुरक्षा के कारण जगन्नाथ जी को फिर बांधने के लिए रस्सी का उपयोग होता है। तो फिर ये कुलीन ग्राम के भक्तों को सेवा दी थी, तकिया बना के लेकर आना हर साल, और ये रस्सी बना के लेकर आना। तो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद सारे वो रहते चैतन्य महाप्रभु के साथ 4 महीने रहते, और फिर जब वो निकलते तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने प्रश्न पूछा। अभी चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। चैतन्य महाप्रभु मतलब राधा और कृष्ण का एकत्रित स्वरूप। देह भेदव गतवतव, जो 2 व्यक्ति थे राधा और कृष्ण, वो एक बनते हैं तो चैतन्य महाप्रभु, और वही चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण 2 बनते हैं तो कृष्ण और श्रीमती राधा रानी। तो दोनों एक जब बनते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो उनको उन्होंने प्रश्न पूछा, महाप्रभु वैष्णव कौन है? वैष्णव कौन है? तो हम जैसे कोई यदि पूछा कि वैष्णव कौन है, तो हम कहते हैं तो धोती कुर्ता पहन लेता है, तिलक लगाता है, कंठी माला पहन ली है, या जप माला जिसके पास है वो वैष्णव है। जैसे मैं कहता हूँ 500 रुपए में वैष्णव बन जाते हैं। 200 रुपए की धोती, एक 200 रुपए का कुर्ता, 420 रुपए का तिलक, 30 रुपए की कंठी माला, 50 रुपए की माला झोली, 500 रुपए के वैष्णव बन गए। ये भी एक वैष्णव है, मगर वैष्णव कौन है? चैतन्य महाप्रभु को जो पूछा, तो महाप्रभु कहे जो एक बार भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। सिर्फ एक बार, जिसने भगवान का एक बार नाम लिया है वो वैष्णव है। तो फिर भक्त प्रसन्न हो गए कि सिर्फ एक बार, तो यदि इस वाक्य के अनुसार गए तो हम सभी वैष्णव हैं। हमने भी एक बार कम से कम नाम लिया ही होगा, चाहे कोई भी हो, नाम लेता है हरे कृष्ण वाले जा रहे या हरे कृष्णा, किसी न किसी न प्रकार से भगवान का नाम लिया ही होगा, तो फिर वो वैष्णव है। नेक्स्ट ईयर जब ये डिवोटीज आए और दूसरी वर्ष उन्होंने जब ये प्रश्न पूछा, महाप्रभु वैष्णव कौन है, और यही प्रश्न था, मगर महाप्रभु का इस बार उत्तर अलग था। महाप्रभु कहे वैष्णव मतलब जो सदैव कीर्तनीय सदा हरि, जो सदैव भगवान का नाम कीर्तन करता है वो वैष्णव है। लेकिन तो हम सोचते हैं कि एक बार नाम ले लिया हम भी वैष्णव हो गए, नैनम गलद अश्रुधार आया, आंखों से मूसलाधार अश्रु आएगी और हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा जो सदैव कीर्तनीय सदा हरि ही, जो सदैव भगवान का कीर्तन करता है वो वैष्णव है। अभी कीर्तन मतलब सिर्फ करताल मृदंग लेकर ही कीर्तन नहीं है, भगवान का स्मरण करना भी कीर्तन है, भगवान के गुणों का व्याख्यान करना भी कीर्तन है, भगवान के नामों का उच्चारण करना भी कीर्तन है, भगवान की कथा श्रवण करना भी कीर्तन है। Whatever is related to Krishna is directly कीर्तन। जो कृष्ण से रिलेटेड है उसको कीर्तन कहा गया है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे, बम्बई, और राधा रास बिहारी मंदिर का कंस्ट्रक्शन चला रहा था, और जब कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत आवाज, फिर बुलडोजर, जेसीबी, मशीन्स अलग अलग काम करती है। तो श्रील प्रभुपाद जी को भक्तों ने कहा, प्रभुपाद जी दिस नॉइस इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर यू, let's settle in some another place little far away from the construction site। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, सारे भक्त सोच रहे थे, एक शेठी नाम के लाइफ मेंबर थे, शेठी बम्बई के एक सबसे प्रसिद्ध व्यापारी, जो श्रील प्रभुपाद जी को बहुत उन्होंने मदद किया शुरुआत के समय में। तो उनके घर पे उन्होंने व्यवस्था की भक्तों ने। श्रील प्रभुपाद जी कहे नहीं,
ये जो कंस्ट्रक्शन की आवाज है वो भी मेरे लिए कीर्तन है, क्योंकि साधारण कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये किसके लिए बन रहा है? राधा रास बिहारी के लिए। राधा रास बिहारी का मंदिर है। परम पूज्य गिरिराज महाराज जी ने एक मंदिर लिखा है, आई विल बिल्ड योर टेम्पल। तो उसमें पूरा उन्होंने इसका वर्णन दिया है, शेठी के घर पे कैसे श्रील प्रभुपाद जी को विनती की गई, मगर प्रभुपाद जी गए नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी मेरे लिए कीर्तन ही है। तो जो भी हम कार्य कर रहे कृष्ण से रिलेटेड या कृष्ण की सेवा कर रहे, तो वो भी कृष्ण का कीर्तन ही है। कीर्तन मतलब सिर्फ करताल और मृदंग लेकर, वो तो है ही कीर्तन, मगर जो भी भगवान से संबंधित है उसको कीर्तन कहा गया है। तीसरे वर्ष यही प्रश्न जो पूछा भक्तों ने कि वैष्णव कौन है, और महाप्रभु ने उस समय कहा जिसको देखने के बाद भगवान की याद आती है, जिनको देखने से इस भगवान का स्मरण होता है, वो वैष्णव है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बार नाम ले लिया तो हम वैष्णव बन गए, नहीं। तो महाप्रभु प्रगति या एडवांसमेंट के स्टेजेस बता रहे। सबसे एक बार नाम लो, फिर भगवान का नाम सदैव लेने का प्रयास करो, और तीसरा जिसे देखने के बाद भगवान का स्मरण होता है, इसका मतलब जो भगवान नाम का प्रचार करता है, जिसे देखने से हमको भी देखकर लोग कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा वाले जय हरे कृष्णा राधे राधे। मैं हर बार जहाँ भी इस वेश में जब देखते हैं लोग, तो कहीं भी कनाडा में भी एक एयरपोर्ट के ऊपर राधे राधे स्वामी जी, या कहीं भी हरे कृष्ण बोल लेते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम शुद्ध भक्त बन गए। श्री प्रभुपाद जी की कृपा इस वेश या इस पोशाक से हमें हरे कृष्ण या भगवान का नाम याद दिला रहे, परंतु हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारा सारा कार्य या भगवान के भक्ति में हमें लगना चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या है वैष्णव मतलब क्या। हम हर रोज प्रातःकाल उठने के बाद सबसे पहला प्रणाम पृथ्वी को करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में, क्योंकि पृथ्वी के जमीन के ऊपर ही पैर रखेंगे, आकाश में तो जाएंगे नहीं। पैर रखेंगे कहाँ? जमीन के ऊपर ही रखेंगे। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, आप में समुद्र निवास कर रहे, ये जो पर्वत है, ये पर्वत आपके स्तनों के समान है। पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, आप विष्णु की पत्नी है। पाद स्पर्श क्षमस्व में, पहले होता था ऐसे प्रणाम होते थे वैदिक सभ्यता में, आज भी कहीं कहीं होते हैं, मगर यह भी जैसे जैसे हम एडवांस कर रहे इस जगत में, तो पूरा ये धीरे 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 कम हो रहा। जैसे ये प्रार्थना होती थी, फिर दूसरी प्रार्थना हाथों को देखकर, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। मगर श्रीमान गौर गोपाल तुमने इसकी अलग व्याख्या की है। कराग्रे वसती फोनम कर मध्य व्हाट्सएपम कर मूले च फेसबुकम प्रभाते मोबाइल दर्शनम। जैसे ही सुबह उठते सबसे पहला मोबाइल से नहीं दिखा तो फिर हार्ट अटैक आज कहाँ गया। तो फिर ये प्रार्थना में जैसे पृथ्वी की प्रार्थना है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, आप विष्णु की पत्नी हैं। अगर पृथ्वी विष्णु की पत्नी है तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव है वो सारे वैष्णव हैं, क्योंकि विष्णु के पुत्र मतलब वैष्णव हो गए। फिर वो कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, वो सारे जो भी पृथ्वी के ऊपर है वो सारे वैष्णव है। क्यों? क्योंकि सारे विष्णु की पत्नी के पुत्र हैं। और जो हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा मतलब पृथ्वी, और वासुदेव के पत्नी है वसुधा, और वसुधैव कुटुंबकम मतलब जो पूरे पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव है वो हमारे कुटुंब के सदस्य हैं, और वो भी वैष्णव है। तो यदि ऐसे हम वैष्णवों को सभी को हम वैष्णवों के रूप में, भक्तों के रूप में देखने का हमें प्रयास करना है। अभी एक दिन में नहीं होगा कि आज हमने कहा और कल सुबह से हम सबको वैष्णव ही देखने लगे। सभी जाएंगे तो सारे वैकुंठ के निवासी वैष्णव हैं, ऐसे होगा नहीं। मगर ये हमें पता तो हो कि क्या है वैष्णव की व्याख्या या वैष्णव अपराध क्या है। तब हमें पता ही नहीं है तो फिर हम अपराध करेंगे। जैसे रास्ते पर चल रहे, किसको पता ही नहीं सिग्नल के विषय में,
या स्पीड के विषय में, तो पुलिस टिकट देगा ही। अगर हमें पता है कि यहाँ पर स्पीड 45 माइल्स है या 85 है या 25 है, जब उसको पता रहेगा तो पता होने के कारण वो अपनी गति स्पीड कम ज़्यादा करेगा, तो उसको टिकट फिर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं वैष्णव अपराध की लिस्ट देखकर, कि हमें पता हो, जिससे हम समय समय पर सचेत रहे और इससे बचे रहे। ये इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ये नहीं कि सभी को डराना है या प्रवचन में आए हुए भक्तों को कहे कि इतने सारे वैष्णव अपराध है तो फिर कभी आए ही नहीं सत्संग में। प्रभु जी आप सत्संग में नहीं आ रहे, मंदिर नहीं आ रहे, प्रभु जी वैष्णव अपराध। आई एम नॉट कमिंग टू टेम्पल, सेफ कीप डिस्टेंस। मैं आऊंगा ही नहीं, जिससे अपराध फिर नहीं होगा। मैं आऊंगा नहीं तो अपराध कहाँ से होगा। मगर शास्त्र ये भी कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरत्रिम विधिम विना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पात वही कल्पते। हम एकांत में कभी भी भक्ति नहीं कर सकते, हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो, चाहे हम सन्यासी बने, गुरु बने, जीबीसी बने, हम कुछ भी क्यों ना बने, मगर हम कभी भी एक अकेले भक्ति नहीं कर सकते। बस सिर्फ भगवान ही अकेले रह सकते हैं। और भगवान भी हमें सिखा रहे कि भगवान देखिए अकेले कभी नहीं रहते, या तो उनके ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ, या बछड़ों के साथ, गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ। कभी कृष्ण को अकेले देखा है क्या? कभी नहीं। कृष्ण कोई ना कोई होगा। यहाँ भी कृष्ण है, मगर यशोदा कृष्ण है, यशोदा के पास। कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते। तो इसीलिए हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए चलो वैष्णव अपराध होगा तो हम आएंगे नहीं भक्तों के संग में। मगर भक्तों के संग में आएंगे नहीं तो फिर प्रगति कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमें भक्तों के संग में आना भी है और सेवा भी करनी है और प्रगति भी करनी है। रोजी क्या है ना, अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे टिकट मिलेगा, तो गाड़ी में चलाऊंगा ही नहीं, मैं घर में बैठूंगा, थोड़ी ऐसे चलेगा। कितने दिन बैठेंगे घर में, काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। रोजी मैं गाड़ी चलाऊंगा, एक्सीडेंट होगा इसलिए मैं घर में रहूंगा। अगर मरना एक्सीडेंट में था, अगर हम बाहर नहीं गए तो घर में कहीं एसी के छेद से सांप आएगा, काट डालेगा, मर जाएंगे। जहां मरना है, मृत्यु लिखी है, वो होना ही है। हम उसको कोई डेस्टिनी को हम संभाल नहीं सकते। दैट इज नॉट इन आवर हैंड। हम सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी से सेवा कर सकते हैं और जिम्मेदारी से हम साधना कर सकते हैं। बाकी एवरीथिंग इन हैंड्स ऑफ कृष्ण। एक वरदराज स्वामी है, वरदराज, दक्षिण भारत में। तिरुपति से आप श्रीरंगम जाएंगे तो बीच में विष्णु कांची है। कांचीपुरम नाम है, मगर उसमें दो कांची है, विष्णु कांची, शिव कांची। शिव कांची में शिव जी का बहुत बड़ा स्थान है, मंदिर, और विष्णु कांची ये विष्णु का स्थान है। और विष्णु कांची में वरदराज स्वामी है। वरदराज, वरदराज मतलब आशीर्वाद देने वालों में सबसे श्रेष्ठ राजा। आशीर्वाद, वरद मतलब वरदान, बोन, आशीर्वाद देने वाले या वरदान देने वाले राजा। तो इसमें उनके एक भक्त थे गोष्ठी पूर्ण, और एक गोष्ठी पूर्ण भगवान की सेवा करते थे, जल लाकर देने के लिए। अभिषेक का कलश, पानी हर रोज लगता है जो अभिषेक के लिए, पानी लाकर देते थे और भगवान उनके साथ चर्चा करते थे, बोलते थे, वार्तालाप। तो एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य ने कहा कि आप पूछिए भगवान को कि यदि हमने भगवान की सेवा की, भगवान की भक्ति की, भगवान ने भगवत गीता में कहा भी है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हमें अंत काल में भगवान का स्मरण करना है, तभी भगवान हमें भगवत धाम ले जाएंगे। अगर गलती से कुछ कारणवश हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाए तो फिर हमारी गति क्या है, पूछ लीजिए भगवान को। तो भगवान ने कहा कि यदि वो भक्त प्रामाणिकता से सेवा कर रहा है और अंतिम समय में यदि गलती से न के न प्रकार एक्सीडेंट हो, बीमारी हो या रोग हो, कुछ कारणवश उसने मेरा स्मरण नहीं किया, तो मेरी जिम्मेदारी है, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं उसको जाके वहां से वापस लेकर आता हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी। वरदराज, तो उनके चढ़ने दर्शन के लिए 18 स्टेप्स है। तो 18 स्टेप्स मतलब भगवत गीता के 18 अध्याय है। तो हम पूरा 100% सरेंडर होते हैं। तो जैसे भगवान 18वें अध्याय में कहे,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। कोई अभी डरने की आवश्यकता नहीं, इसलिए भगवान आशीर्वाद दे रहे, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अभी कोई डरने की आपको आवश्यकता नहीं। तो जब ये सुना, गुरु महाराज ने जब ये सुना, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, तो महाराज जी जब सुने, इन 1992 महाराज 91 की बात है, तो महाराज सोच रहे थे कि कितने सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स, दे आर सो मच दे आर डूइंग फॉर श्रील प्रभुपाद, कितनी सेवा कर रहे प्रभुपाद जी की, और मेरे पास तो सिर्फ एक पदयात्रा या कुछ थोड़ी बहुत सेवाएं हैं, तो चलो मैं भी जाता हूँ। और पदयात्रा जब वहां से जा रही थी तो महाराज जी वरदराज मंदिर में गए और वरदराज को प्रार्थना की, हे वरदराज, मुझे भी मेरे गुरु भाइयों जैसी बहुत सारी सेवाएं दीजिए, जिससे मैं भी श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकूं। मेरे पास बहुत कम सेवा है, थोड़ी ज्यादा सेवा मुझे दीजिए। और फिर जब प्रार्थना की तो वरदराज जी ने वो प्रार्थना सुनी और इतनी सारी सेवा दी कि महाराज जी को प्रभुपाद जी का जो सेंटेनियल था, प्रभुपाद सेंटेनियल, प्रभुपाद 100th बर्थ एनिवर्सरी 1996, उसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इतनी सेवा दी। फिर 108 पदयात्रा, 160 देशों में कीर्तन, फिर प्रभुपाद के सारे शिष्यों को वापस लाना, फिर प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण, इतनी सारी सेवाएं बढ़ी कि 1996 में जाकर भगवान को प्रार्थना करना पड़ा, थोड़ी सेवा भी कम कर दो। बहुत सारी सेवा हो गई वरदराज, थोड़ी अभी सेवाएं हमें कम करा दीजिए। तो ऐसे भगवान आज भी भक्तों की सेवा से या भक्तों से आदान प्रदान कर रहे हैं, चाहे भी कहाँ पे भी हो। भगवान है और भगवान का हम प्रेम से यदि प्रेममय सेवा कर रहे तो भगवान उसका आदान प्रदान, ए यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। जिस भावना से हम भगवान की सेवा कर रहे उससे वो आदान प्रदान कर रहे। कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, छोटी सेवा बड़ी सेवा कुछ नहीं जानता, मगर हमारी शरणागति और उस सेवा की भावना पर हमारी साधना या हमारा भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित होता है। जैसे जब सेतु बन रहा था, राम सेतु, भारत से लेकर लंका, श्रीलंका जाने के लिए, तो हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रहे थे और गिलहरी अपनी थोड़ी सी रेती शरीर पर लगा के वहां पर फेंक रही थी। तो हनुमान जी कहे चल हट जा, बीच में तो मर जाएगी पैर के नीचे आकर। तो फिर भगवान रामचंद्र कहे वो अपनी तरह से सेवा कर रही है, आप अपने शक्ति से सेवा कर रहे हैं। और गिलहरी को भगवान ने ऐसे हाथ फिराया और उसके लिए देखिए यहाँ की गिलहरी स्क्वायरल्स और इंडिया की स्क्वायरल्स अंतर है, उनके ऊपर 3 उंगलियों के निशान है भगवान के, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो स्क्वायरल्स है वो प्लेन है उनके ऊपर, मगर इंडिया में जो है उनके ऊपर से भगवान के 3 उंगलियों के निशान आज भी उनका वो स्मरण करते हैं, प्रभु रामचंद्र का आशीर्वाद। तो ये वैष्णवता हम जो सीख रहे हैं या वैष्णव बनने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो हम सभी भक्तों के साथ में हैं, सभी भक्तों के साथ सेवा करते हुए कभी कभी हम हमारे गलतियों के कारण या हमारे पिछले कर्मों के कारण या हमारे आदतों के कारण हम किसी को कुछ बोल देते हैं या ऐसे किसी का मजाक कर देते हैं, किसी के पूर्व जन्म के प्रति या वो भक्त बनने के पहले उसका जो जीवन था, अरे ये तो पता है क्या कर रहा था, मुझे अभी बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे, ये पहले क्या था हमें पता है। ऐसे जब हम बोलते हैं तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी आर ऑफेंडिंग दैट पर्टिकुलर डिवोटी। और इसीलिए इसके जो अलग अलग प्रकार है, मगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी भी भक्तों के लिए अपराध नहीं करता। जैसे रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में वर्णन करते हैं कि जैसे एक भक्त है, वो भक्त के लिए उदाहरण दे रहे, जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति जो धार्मिक जीवन में प्रगतिशील है, जिसको आध्यात्मिक जीवन के विषय में ज्ञान है, वो जब गंगा स्नान करने के लिए जाता है तो गंगा में जो बारिश के कारण थोड़ी गंगा का पानी थोड़ा लाल लाल हो गया है, मिट्टी मिक्स हो गई है, या उसमें कलाई आई गई है, जो होता है ना हरा हरा जो पानी के रुकने के कारण होता है, लाई जिसको कहते हैं, वो आ गया है। अरे इतने गंदे पानी में मैं स्नान करूंगा तो मेरे सुंदर स्किन का क्या होगा।
तो जो बुद्धिमान या आध्यात्मिक जीवन में जिसको ज्ञान नहीं है वो स्नान करता नहीं, मगर जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील है, गंगा का जिसको महत्व पता है, वो कभी भी जाकर गंगा में प्रणाम करके गंगा स्नान करके ही आएगा। और उसी प्रकार जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील है वो कभी भी भक्तों की जाति, भक्तों का व्यंग मतलब फिजिकली हैंडीकैप जो है वो, या उनके गुणों के ऊपर कभी भी कमेंट नहीं करेगा। उसको पता है ये शरीर ऊपर से ऐसे है, मगर हृदय उसका भगवान के लिए शरणागत है। जैसे मराठी में एक संत हुए चोखा मेळा, जैसे तुकाराम महाराज थे, ज्ञानेश्वर, ऐसे चोखा मेळा एक संत हुए। वो चोखा मेळा अपने प्रार्थना में लिखते हैं, उस डोंगा परी रस नोहे डोंगा, काय भूललासी वर लिया रंगा। चोखा डोंगा परी भाव नहे डोंगा, काय भूललासी वर लिया रंगा। जैसे गन्ना, शुगर केन यदि ऐसे टेढ़ा होता है, कभी कभी सारे शुगर केन स्ट्रेट नहीं होते, कभी कभी टेढ़े मेढ़े भी आ जाते हैं उनके खेती में। तो यदि गन्ना, शुगर केन अगर टेढ़ा है मगर उसका स्वाद या उसका जो शुगर केन जूस कभी टेढ़ा नहीं होता, वो स्वाद हमेशा मीठा ही होता है। उसी प्रकार चोखा मेढ़ा जो भक्त कह रहे कि मैं टेढ़ा मेढ़ा हो सकता हूं मगर मेरा भाव टेढ़ा मेढ़ा नहीं। और इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है कभी भी भक्तों के गुण, उनका शारीरिक व्यंग, उनके कर्म के ऊपर कभी टिका नहीं करता। और इसीलिए कहा गया है, वैष्णवे जाति बुद्धिसु गुरुषु नरमति विष्णु शिलायाम बुद्धि नारकी सह। गुरुषु नरमति, गुरु को सर्वसाधारण व्यक्ति समझना। अरे ये तो क्या बोलते ही रहते, कई कई भक्त कहते हैं अरे गुरु महाराज तो बोलते ही रहते, कभी भी ये महाराज ऐसे ही बोलते ही रहते। दे आर टेकिंग इट वेरी लाइटली। आध्यात्मिक गुरु को सर्वसाधारण व्यक्ति समझना। वैष्णवे जाति बुद्धिसु, वैष्णवों को उनके जाति बुद्धि से गिनने का प्रयास करना। अरे ये कम जाति का वैष्णव, अरे ये बड़े जाति का वैष्णव, इस समझना। या विष्णु शिलायाम, विष्णु मतलब भगवान के विग्रह जो है, अरे काला पत्थर है, अरे दिस इज व्हाइट मार्बल, इज वेरी नाइस। ये ब्लैक मार्बल अच्छा नहीं है, व्हाइट मार्बल अच्छा होता है। भगवान को पत्थर समझना। विष्णु शिलायाम बुद्धि नारकी सह, और ऐसी बुद्धि नरक में लेकर जाने वाली बुद्धि है। और इसीलिए ऐसे अपराधों से हमें सदैव बचना चाहिए। तो श्रील श्रीपाद रामानुजाचार्य जो दक्षिण भारत के सबसे महान आचार्य हुए, एक प्रसिद्ध आचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, एक महान शंकराचार्य जिन्होंने मायावाद का प्रचार किया। श्रीपाद रामानुजाचार्य मतलब लक्ष्मण के अंशावतार भी कहे जाते हैं, लक्ष्मण जी या बलराम जी। राम अनुजः, अनुज मतलब छोटे भाई। कृष्ण अग्रजः, कृष्ण के अग्रज मतलब पहले मतलब बड़े भाई बलराम। कृष्ण अग्रज बलराम, राम अनुजः मतलब लक्ष्मण। लक्ष्मण जी के अंशावतार या ये लक्ष्मण जी के अवतार भी इनको कहा जाता है। और आज भी आप दक्षिण भारत में जाएंगे, इनका आविर्भाव हुआ 1017 अप्रैल महीने में, 1017 अप्रैल। और अभी क्या चल रहा है 2025, तो 17 8 और वो 17 मतलब 1008 साल, 1008 साल हो गए। और आज भी आप कभी दक्षिण भारत जाएंगे, स्पेशली श्रीरंगम में श्री संप्रदाय का हेड ऑफिस है। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर त्रिची, तिरुचिरापल्ली या श्रीरंगम, वहां पर रामानुजाचार्य के विग्रह है या उनका जो ओरिजिनल बॉडी एज इट इज आज भी है, आफ्टर 1008 years एकदम उनको संभाल के रखा है। चंदन और कर्पूर का लेपन करके एसिडिटी जो बैठी है ध्यान अवस्था में, आज भी उनके दर्शन हम कर सकते हैं। आप ऐसे कोई गए श्रीरंगम? 1 2 3 4 आपने देखा, दर्शन किया श्रीपाद रामानुजाचार्य का? मंदिर के अंदर जाने के पहले ही उनकी सन्निधि है, रामानुजर सन्निधि मतलब मंदिर, और वहां पर दर्शन करके फिर रामानुजाचार्य का हम दर्शन कर सकते हैं। इनका संप्रदाय श्री संप्रदाय, श्री मतलब लक्ष्मी, ये लक्ष्मी के द्वारा स्थापित संप्रदाय है
मगर रामानुजाचार्य उसके मुख्य आचार्य रहे। फाउंडर रामानुजाचार्य नहीं है, फाउंडेड बाय साक्षात लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी जी ने स्थापना की है। और इनके ही रामानुजाचार्य के पहले दक्षिण भारत में कई सारे आचार्य हुए, उसमें प्रसिद्ध हुए आलवार, जो 12 आलवार जिनका नाम आपने सुना होगा, पोयगे आलवार, नम आलवार, राजा कुलशेखर, आंडाल, ये सारे आलवार हुए। और इन्होंने तमिल भाषा में अपनी सारी प्रार्थनाएं लिखी है। और उसमें से एक थे राजा कुलशेखर, और कुलशेखर की प्रार्थनाएं मुकुंद माला स्तोत्र, श्रील प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर कमेंट्री दी है, मुकुंद माला स्तोत्र। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम आद्यैव मे विषमे मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम, हे भगवान अभी मेरा मन एक हंस के समान है और आपके चरण कमल के समान है। जब मेरा ये शरीर, मेरा मन अच्छा है, ठीक है, तभी आपके कमल रूपी चरणों में इसको लगा लो। एक बार इस शरीर में कफ वात पित्त बढ़ गया तो आपका स्मरण करना कठिन हो जाए। जब तक शरीर अच्छा है, जैसे फूल फ्रेश है, तभी हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर जब अच्छा है, तभी भगवान आपकी सेवा में इसको लगा लीजिए। तो अंडाल, ये सारे जितने भी अलवार हुए, 12 अलवार, ये भगवान के अस्त्र और शस्त्र है। ये कोई साधारण नहीं है, ये वैष्णव है। मगर ये वैष्णव कौन है? जैसे भगवान की कौमुदी की गदा, भगवान की गदा है, वो एक भक्त बने। शारंग पाणी, भगवान का जो धनुष है शारंग, वो एक भक्त बने। भगवान का सुदर्शन चक्र, वो एक भक्त बने। जो तलवार है, वो एक भक्त बने। तो ऐसे अलग 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 जो शस्त्र है, वो भगवान के भक्त बने, जो अलवार हुए। उनके बाद आए यामुनाचार्य, और यामुनाचार्य के बाद आए श्रीपाद रामानुजाचार्य। ये पूरी एक लिनेज है एवं परंपरा प्राप्ति। और उनका जो श्री संप्रदाय का हेड ऑफिस है श्रीरंगम। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य कई स्थानों पर, विशेष रूप से श्रीरंगम, मेलकोटे, अहोबिलम, ऐसे उनके अलग अलग प्रसिद्ध स्थान हैं। मेलकोटे में रामानुजाचार्य 12 वर्ष रहे अपने हजारों शिष्यों के साथ। और तिरुपति एक उनका स्थान है, पुष्प मंडपम, ज्ञान मंडपम मेलकोटे है, भोग मंडपम अपना श्रीरंगम है। तो ऐसे स्थान पर रहकर, और स्पेशली व्हाइल ही वाज स्टेइंग इन मेलकोटे, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने भाष्य लिखा, श्री भाष्य, और वहां पर ज्ञान का उनका भंडार है। तो उन्होंने वैष्णवों के लिए, अभी हम मेन टॉपिक पर पहुंच रहे। दिस वाज व्हाटएवर वी डिस्कस इन लास्ट हाफ एन आवर, दिस वाज जस्ट सेटिंग द सीन। सेटिंग द सीन कह सकते हैं कि क्या रामानुजाचार्य कहना चाहते हैं। और श्रीपाद रामानुजाचार्य 12 प्रकार के वैष्णव अपराध वो लिख रहे। अभी हमने तो सुना वैष्णव अपराध मतलब एक ही होता है, वैष्णव की निंदा करना, बस हो गया वैष्णव अपराध। फर्स्ट बॉल पर ही हम विकेट हो जाते हैं, आउट। भगवान नाम का प्रचार करने वाले भगवत भक्तों की निंदा करना पहला सबसे नाम अपराध, और पहले ही अपराध पर हमारी विकेट उड़ जाती है। और फिर नाम में रुचि, वैष्णव सेवा, ये पूरा धीरे 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 रुचि नष्ट हो जाती है। तो फिर अरे 12 प्रकार, कौन से 12 प्रकार के अपराध हो सकते हैं? तो उन्होंने ये लिस्ट बनाई है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वे कहते हैं 12 प्रकार के वैष्णव अपराधों में सबसे पहला है जन्म निरूपण। जन्म निरूपण मतलब यदि कोई एक भक्त विशिष्ट कुल में जन्म लिया है, उसके जन्म के अनुसार उसकी भक्ति का मूल्य मापन करना। जैसे अरे ये वैष्णव तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, अरे ये वैष्णव तो उच्च कुल में जन्म लिया, अरे वह वैष्णव तो उत्तर भारत एकदम ब्राह्मण शुद्ध क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया, अरे ये तो सादा ब्राह्मण, ये तो इसका है इतना जन्म नहीं, ये तो लो कास्ट ब्राह्मण, लो कास्ट वाला वैष्णव।
तो ये है जन्म निरूपण। जब भी हम भक्ति में आने के बाद किसी भी भक्त को उसके जन्म के कारण उसकी भक्ति गिनने का प्रयास कर रहे, दैट इज द फर्स्ट ऑफेंस। क्या है? जन्म निरूपण। याद रहेगा, फर्स्ट जन्म निरूपण मतलब उसके जन्म से, ये उच्च कुल जन्म है, ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ये शूद्र परिवार में जन्म लिया, यहाँ तो इतना नहीं मगर होता है कई कई स्थानों पर, और जाति से उसके ये कम है। कभी कभी तो उनके घर में लोग जाना भी नहीं चाहते, अरे कम जाति के लोग हैं, उनको घर के अंदर नहीं लेंगे, उनको पीने का पानी बाहर से देंगे। पहले था, मगर वो भक्त बनने के बाद वो सारे जाति धर्म के परे अभी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन जाता है जब वो व्यक्ति वैष्णव बन जाता है। दूसरा शरीर निरूपण। शरीर निरूपण मतलब उस व्यक्ति का व्यक्तिगत शरीर देखकर, जैसे मनुष्य शरीर है, प्राणी शरीर है, अरे वानर है, वानर बंदर क्या भगवान की सेवा कर सकता है, अरे ये तो पक्षी है जटायु, ये भगवान की क्या सेवा कर सकता है, इसको कहा गया है शरीर निरूपण। देखिए प्रभु रामचंद्र की लीला में हनुमान जी अवतरित हुए, जांबवान जी थे, जटायु थे, जटायु कौन? पक्षी थे, जांबवान जी भालू थे, हनुमान जी वानर थे। सभी का शरीर उन्होंने अपने अपने स्वरूप से भगवान की सेवा में लगाया। मगर उनके प्रति यदि हम सोचेंगे कि अरे ये तो प्राणी है, ये पक्षी है, ये बंदर है, ये कैसे, तो ये भी वैष्णव अपराध का प्रकार है, शरीर निरूपण। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो भगवान अवतरित होने के पहले सारी देवी देवता पृथ्वी गाय बनकर ब्रह्मा जी के पास गए, और जब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी मेरे स्वामी नारायण के पास जाना होगा। तो जो पृथ्वी गाय का स्वरूप लेकर गई थी, तो पृथ्वी और अन्य सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। क्षीर सागर मतलब कंडेंस मिल्क, सिर्फ दूध नहीं, कंडेंस मिल्क। क्षीर मतलब जो होता है ना, बासुंदी या रबड़ी जैसे होता है, उसको कहा जाता है क्षीर, और उसका समुद्र है। क्षीर सागर के समुद्र में क्षीरोदक्षाई विष्णु अनंत शेष की शैया पर आराम कर रहे। ऐसे अलग अलग समुद्र है, जो हम देख रहे सिर्फ वो नमकीन पानी का है, खारा पानी। इक्षु रस मतलब शुगर केन का समुद्र है, शराब का समुद्र है, फिर मधु मतलब हनी का समुद्र है। ऐसे अलग अलग प्रकार के घी का समुद्र है। और अपने विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु उस समुद्र में शयन कर रहे। तो ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं के साथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। जो हम ब्राह्मण दीक्षित जो भक्त है, पुरुष सुक्त प्रार्थना जो है, वो उस तट पर ब्रह्मा जी और देवताओं ने की थी। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वः अत्यतिष्ठः दशांगुलम। ये जो प्रार्थना ब्राह्मण गाते हैं यज्ञ के समय में या अभिषेक के समय में, ये वो प्रार्थना है। और ये प्रार्थना सुनकर नारायण ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप अभी पृथ्वी पर अवतरित हो जाइए और विशेष रूप से यदुकुल और वृष्णि कुल में अवतरित हो जाइए। आने वाले समय में मैं भी यदुकुल में कृष्ण के रूप में अवतरित होने वाला हूँ। और जब यही देवता पुनः गए त्रेता युग में भगवान को अवतरित कराने के लिए, तो उस समय भगवान ने सारी देवी देवताओं को कहा था कि आप जाकर, मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लूंगा और मुझे सहायता करने के लिए आप सारे वानर सेना बन जाओ। ये सारे बंदर कोई साधारण नहीं है। कोई भी बंदर भगवान के साथ कैसे रह सकता है? ये सारे बंदर देवी देवता है जो भगवान के आदेश से भगवान को सहायता करने के लिए वानर सेना के रूप में अवतरित लिए। और इसीलिए कोई भी प्राणी, कोई भी पक्षी के अनुसार हम उनको शरीर के द्वारा उनकी भक्ति नहीं माप सकते। जैसे शिवानंद सेन श्रीकांत सेन के भाई थे। चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा पर निकलते थे तो यात्रा की एडवांस पार्टी शिवानंद सेन की जिम्मेदारी थी।
शिवानंद सेन, चैतन्य महाप्रभु के यात्रा पार्टी के एडवांस पार्टी कोऑर्डिनेटर, और उनके पास एक कुत्ता था। और एक दिन वो बोट में जा रहे थे तो बोट के मालिक ने कहा डॉग्स आर नॉट अलाउड, पेट्स नॉट अलाउड। तो बहुत दुखी हो, अभी नदी तो पार करनी है, यात्रा की तैयारी करनी है, चैतन्य महाप्रभु आएंगे तो कैसे होगा, बहुत दुखी हो गए। फिर भी क्या करे, उसको पीछे छोड़कर चले गए। जब वो वापस आए यात्रा से तो देखा कि चैतन्य महाप्रभु के सामने वो कुत्ता है और चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपना उच्छिष्ट महाप्रसाद उस कुत्ते को फेंक रहे। जैसे बिल्ली थी, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों के पास आ रही थी बार बार, और भक्त लोग उसको हकार लेते, चलो निकलो यहाँ से, कर देना। मगर प्रभुपाद जी कहे लेट इट बी। और प्रभुपाद जी ने अपने चरण उस बिल्ली के ऊपर रखे। तो भक्तों ने पूछा कौन थे, बोले एक साधु थे, वैष्णव के प्रति अपराध करने के कारण उसकी भक्ति अटक गई थी, ना वो इज डिलीवर्ड, उसकी अभी मुक्ति हो चुकी है। तो इसीलिए शरीर से हम कभी भक्तों का चयन या भक्तों की शुद्ध भक्ति नहीं माप सकते। जैसे एक बार श्री प्रभुपाद जी को पूछा गया, स्वामी जी ये जो फूल है भगवान के चरणों में हम अर्पण कर रहे हैं, उनका क्या भविष्य है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, ये जो फूल जिनके भगवान के चरणों में इनका अर्पण हुआ है या भगवान की सेवा में आए हैं, ये जिस पेड़ से आए हैं, ये पेड़ अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे और फिर इनकी भक्ति प्रारंभ होगी। देखिए, सिर्फ फूल के पेड़ जो सिर्फ भगवान की सेवा में आ रहे हैं, ऐसे नहीं हम किसी को जाके दे रहे, वो नहीं है। जो भगवान की सेवा में फूल आ रहे हैं, वो भी अगले जन्म में वो पेड़ मनुष्य बनेगा और भगवान की भक्ति करने के लिए उसको अलग मार्ग मिलेगा। तो ये दूसरा शरीर निरूपण। तीसरा भाव निरूपण। भाव निरूपण मतलब एक छोटा बच्चा है और एक छोटा बालक है, उसको हमें डांटने का अनुमति है, ये समझना। छोटे बच्चे को हम डांटते ना कभी कभी, ये क्या बच्चा है, डांटते रहते। बच्चों को बिना गलती किए डांटना या हमारे अधिकार का दुरुपयोग करना, ये भी वैष्णव अपराध है, यदि वो वैष्णव बच्चे हैं तो। जैसे प्रभुपाद जी कहे, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रन, दीज आर वैकुंठ चिल्ड्रंस। प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने, स्पेशली वन माता जी रोट श्रील प्रभुपाद that Prabhupada, Swamiji, I am not getting enough time for my kids because I am so much engaged in deity worship. I am totally busy. तो श्रील प्रभुपाद जी कहे, give time to your children and decrease your deity worship सेवा। deity worship कम करो और बच्चों को ध्यान दो। और उसके आगे प्रभुपाद जी लिखे, these children are not ordinary children, they are वैकुंठ children, क्योंकि वैकुंठ से आए हैं। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। ये कोई बच्चे साधारण है, कोई बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि है, अपनी भक्ति पूर्ण नहीं हुई थी, इसीलिए वो भगवत भक्तों के घर में जन्म लिए ताकि उनकी भक्ति पूर्ण हो सके। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, सारे छोटे छोटे बच्चे करताल, मृदंग, गायन सब कर सकते हैं। हमको नरसिंह आरती किसी ने बोला गाने के लिए, प्रभु जी डर लगता आता नहीं, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी। और छोटे बच्चे बिना डरे गाते हैं। हम सोच रहे उनकी भक्ति यहीं से शुरुआत हुई, नहीं, जिन्होंने वहां समाप्त की थी वहीं से उनकी शुरू हुई है। इसीलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल। अगर हम बिना उनको कुछ कारण डांटते ही रहते, बच्चे दिखे तो डांट रहे, बस कारण नहीं, डांटते रहते, अच्छा लगता है, इसीलिए डांटना अच्छा लगता है। जैसे ध्रुव महाराज जब 5 साल के थे और अपने पिता की गोदी में बैठने गए, उत्तानपाद महाराज, और उनकी पत्नी सुरुचि, नाम भी देखिए शास्त्र में कैसे, इट विद द मीनिंग, सुरुचि, रुचि मीन्स टेस्ट, जो अच्छी रुचि मिलती थी रानी से, इसीलिए उसका नाम था सुरुचि। एंड अनदर वाज सुनीति, नीति मीन्स बुद्धि। अगर अच्छी बुद्धि से काम करना लोगों को अच्छा नहीं लगता, टेस्ट अच्छी लगती है। कोई अगर अच्छी बातें बताए तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा खाने के लिए दो तो अच्छा लगता है। तो सुरुचि जो जिससे अटैच थे उत्तानपाद, और उन्होंने ध्रुव महाराज को धक्का मार के नीचे गिरा दिया और कहा, अगर आपको राजा के गोदी में बैठना है तो पुनः
ये शरीर त्याग कर मेरे गर्भ से आपको जन्म लेना होगा, तभी आप राजा के गोदी में बैठ सकते हैं। और उस समय उत्तानपाद महाराज कुछ नहीं बोले, मौनम स्वीकृति लक्षणम। जब हम शांत रहते इसका मतलब वी आर एक्सेप्टिंग इट। और फिर दोनों भी, जब ध्रुव महाराज भक्त बने 6 महीने के बाद भगवान का दर्शन हुआ, और फिर आगे चलकर वो और सुनीति दोनों भी भगवत धाम चले गए, सुनीति और ध्रुव महाराज। और ये उत्तानपाद और सुरुचि दोनों भी जंगल में आग में भस्म होकर मर गए। तो आचार्यगण लिखते हैं क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि इन दोनों ने ध्रुव महाराज के प्रति अपराध किया था। और अपराध, वो वैष्णव अपराध किया पहले, वो भक्त बनने के पहले, मगर एक बार वो भक्त बन गए तो उनके पहले के भी, भक्त बनने के पहले भी जो अपराध थे, ऑल कैलकुलेटेड इन वैष्णव अपराध। तो इसीलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल। उनके बाद भी, भक्त बनने के बाद भी पहले जो अपराध थे वो सारे वैष्णव अपराध में गिनते गए। तो ये है तीसरा, भाव निरूपण। चौथा, आश्रम निरूपण। आश्रम मतलब पर्टिकुलरली जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सिर्फ सन्यासी प्योर ड्यूटी है बस। जो ब्रह्मचारी या स्टेइंग इन ब्रह्मचारी आश्रम, दे आर ओनली प्योर ड्यूटीज, ऐसे समझना। कोई भी हो सकते, गृहस्थ भी हो या ब्रह्मचारी हो, कोई आश्रम में उनके कपड़े, दिस जो कपड़े जो है, दिस इज लाइक ओनली, जो क्या कहते हैं उसको, उपाधि है बस। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सिर्फ पोजीशन या उपाधि है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये उपाधि है। व्यक्ति अलग है और उसकी उपाधि अलग है। तो सिर्फ उनके कपड़ों से हम उनको शुद्ध भक्त नहीं समझ सकते। सिर्फ ब्राह्मण ही या सिर्फ गृहस्थ ही शुद्ध भक्त है, ब्रह्मचारी तो सिर्फ मंदिर में रहते इसलिए काम धंधा नहीं करते वो शुद्ध नहीं है, सन्यासी कुछ काम धंधा नहीं करते सिर्फ घूमते रहते इसलिए शुद्ध नहीं। हर एक की हृदय के द्वारा जो भी भगवान से संबंध है उनकी शुद्धता है। तो उनकी शुद्धता हम सिर्फ आश्रम से नहीं समझ सकते। जैसे कोई गृहस्थ समझे कि सिर्फ सन्यासी शुद्ध भक्त है, या सन्यासी समझे सिर्फ ब्रह्मचारी शुद्ध भक्त है, नहीं। जैसे एक ब्राह्मण था और एक वैश्या थी, और दोनों आमने सामने रहते थे। वो वैश्या हर रोज ब्राह्मण को देखती थी और सोचती, प्रोस्टिट्यूट, कि मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरे इस शरीर का दुरुपयोग किया है पैसे धनार्जन करने के लिए। और ये ब्राह्मण हर रोज भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और वो चिंतन करती थी किसका, ब्राह्मण का। और ये ब्राह्मण किसका चिंतन करता था, विष्णु का नहीं, ये वैश्या का चिंतन करता था। ये वैश्या क्या, कितने लोग आए, कितना पैसा कमाया होगा, कौन कौन आया, कौन कौन गया, वो उसका चिंतन। तो अंततोगत्वा वैश्या भगवत धाम चली गई, वो ब्राह्मण नहीं गया, क्योंकि वो चिंतन करती थी भगवान के भक्त का और नारायण का। इसलिए आश्रम के ऊपर हम कभी भी भगवत भक्ति का माप तोल नहीं कर सकते। नंबर 6, अव्यय निरूपण। अच्छा 5 छूट गए। अच्छा 5, पाँच। अव्यय निरूपण। अव्यय निरूपण मतलब शारीरिक व्यंग या बीमारी के कारण। कोई व्यक्ति का व्यंग है शरीर, या उसका रंग अलग है, या बीमार है, बीमारी के कारण भक्ति नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बार बार हम उनको टोकते रहना, या उनके बीमारी को लेकर उनका हंसी मजाक उड़ाना, अरे क्या तो सोते रहता है, ये मंगल आरती नहीं आता, और उसका सही में कुछ तो कारण होगा ना। मंगल आरती नहीं आता इसका मतलब नहीं कि सोया हुआ ही है। अगर वो मंदिर नहीं आ रहा है, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा होगा, या स्नान नहीं कर पा रहा होगा, या चल नहीं पा रहा होगा, उसके शारीरिक जो बीमारी के कारण यदि वो कुछ सेवा नहीं कर पाता, इसीलिए वो सेवा, उसकी शुद्ध भक्ति हम नहीं जान सकते। उसको कहा गया है अव्यय निरूपण। जैसे रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कि रूप गोस्वामी ध्यान करते हुए बैठे थे और भगवान का चिंतन करते हुए वो हंसे कृष्ण लीला देखकर, मगर सामने से एक व्यक्ति जा रहा था जिसका शरीर व्यंग था,
मतलब कूड़ा जो होता है ना, शरीर जो ठीक नहीं है, और हंसना देखकर वो बहुत दुखी हो गया। रूप गोस्वामी जैसे भक्त मेरे ऊपर हंस रहे, और उस समय से उनका कृष्ण लीला, जो कृष्ण का संबंध था, वो पूरा बंद हो गया, नष्ट, स्टॉप। फिर उन्होंने अपने भाई सनातन गोस्वामी से पूछा, अपने गुरुजनों से, कैसे क्यों कृष्ण लीला मेरी टोटली बंद हो गई है, क्या कर सकता हूँ? बोले आपने किसी ना किसी के प्रति अपराध किया है, इसीलिए हुआ है। तो सारे वैष्णवों को, सारे भक्तों को आप प्रसाद के लिए बुलाओ, जो नहीं आएगा इसका मतलब he has offended, he has taken that offense। तो फिर जब बुलाया सबको तो व्यक्ति नहीं आया, तो फिर दोनों जाके क्षमा मांगने लगे। बोले अरे रूप गोस्वामी आप, बोले आप मुझसे, मेरे ऊपर हंसे इसलिए मुझे दुख लगा। बोले साधारण व्यक्ति तो हंसते, मगर आप जैसे महान आचार्य मेरे ऊपर हंसे इसीलिए दुख लगा। बोले नहीं, मैं आपके लिए नहीं, मैं कृष्ण लीला कर रहा था, उस समय मैं कृष्ण लीला देखकर हंसा। तो फिर ऑफेंस नॉलिफाई हो गया और कृष्ण लीला में वो पुनः देखने लगे। नेक्स्ट है आलस्य निरूपण। आलस्य मतलब एक भक्त का खाना पीना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के ऊपर उसकी भक्ति को ढूंढने का प्रयास करना, या भक्ति मापने का। अरे कितना खाता है यार, see how much he is eating, 4 चपातीस, 2 times राइस, 4 रसगुल्ला, अरे भाई वो पचा रहा है, उसको खाना है, हमको क्या करना है? जैसे भगवान भगवद गीता में कहे कि ये जो 4 प्रकार का अन्न जो है, पचानन्नम चतुर्विधम, ये 4 प्रकार का अन्न पचाने की शक्ति या पाचन रस भी मैं हूँ। कौन सा है 4 प्रकार का भोजन? कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, हो गया 4 प्रकार। कौन से 4 प्रकार? रास्तिक, तामसिक भी नहीं। 4 प्रकार कौन से? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्य तृप्ता हरि भक्त संघान। चतुर्विधा मतलब 4 प्रकार का प्रसाद, चाटने वाला, चूसने वाला, पीने वाला और चबाने वाला, ये 4 प्रकार के चतुर्विधा, चाटने वाला, चूसने वाला, पीने वाला और चबाने वाला। तो किसी के आहार पर, अरे कितना सोता है, 10-10 घंटे सोता है, अरे वो सो रहा है, हमारा क्या जाने वाला है, वो सोना है, उसका जप है, उसकी भक्ति है। किसी के खाने से, सोने से, उसके आहार, निद्रा, भय, मैथुन से उसकी भक्ति मापने का प्रयास करना, उसको कहा गया है आलस्य निरूपण। 7वां है वास निरूपण। वास निरूपण मतलब ये सोचना कि जो भगवान के धाम में रहते हैं, धामवासी, ब्रजवासी, दे आर ओनली प्योर डिवोटीज, बस और कोई नहीं हो सकता। अरे धामवास रहने वाले ही, धाम में रहने वाले शुद्ध भक्त। तो धामवास मतलब क्या? ब्रजवास। हम लास्ट टाइम में डिस्कस किए, धामवास या ब्रजवास 4 प्रकार का है, 4 कैटेगरीज। सबसे नंबर 1, दोज हु हैव टेकन बर्थ इन द होली प्लेस, जिनका जन्म ही धाम में हुआ है, उनको धामवासी, ब्रजवासी या ब्रजजन कहा गया है। ब्रजजन रंजन, ब्रजजन मतलब जिन्होंने धाम में ही जन्म लिया है। दूसरा धामवासी या ब्रजवासी वो है जिन्होंने जन्म अलग जगह पर लिया, मगर सब कुछ अपना घर बोझा बिस्तरा बांध के हमेशा के लिए धाम में आकर रह गए परमानेंटली। वो सेकंड कैटेगरी हो गई। जन्म हुआ था अलग जगह पे, मगर वो आके अभी धाम में निवास कर रहे। तीसरे कैटेगरी या क्राइटेरिया है हम जैसे, 8-10 दिन के लिए जाते हैं वृंदावन यात्रा, लस्सी, चाट, बांके बिहारी, हो गई यात्रा वापस। तो जैसे ये धामवासी, वो भी धामवासी है, कुछ दिन के लिए जा रहे, धाम में दर्शन करेंगे, यात्रा करेंगे, वापस आएंगे। और चौथी कैटेगरी वो है जो कभी धाम में गए नहीं, मगर जिनका मन, उनका चित्त सदैव धाम में है। जैसे महाप्रभु कहे, मोरा मन वृंदावन, वो हमेशा वृंदावन का चिंतन कर रहे, न्यू जर्सी में रहते हुए भी, कि कब मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन वृंदावन। और वृंदावन सिर्फ धामवास नहीं, वृंदावन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्शियसनेस।
हमारी मन, हमारी स्थिति, हम जो धाम के विषय में चिंतन कर रहे हैं वो फोर्थ कैटेगरी या कैटेगरी जो है, और ये लास्ट कैटेगरी कभी कभी फर्स्ट क्लास कैटेगरी में आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम धाम में जाकर अपराध करते हैं, मगर जो धाम में कभी गए नहीं वो धाम का चिंतन करते हुए धाम की सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जैसे देखिए, हम 2 दिन पहले, सबसे पहले जाएंगे धाम को दंडवत करेंगे, दूसरे दिन अरे कचरा है कपड़े में लग जाएगा, नहीं करेंगे, तीसरे दिन फिर रिक्शा वाले से झगड़ा करेंगे, कल तो 20 रुपए में गया था, आज 40 रुपए, लूट रहे क्या हमको अमेरिकन देखकर। तो ये जो भावनाएं बदल जाती है। तो मगर जो कभी गया ही नहीं है वो धाम में जो इच्छा रखता है उसको कहा गया फोर्थ कैटेगरी, वो भी ब्रजवासी ही है। 8वां बंधु निरूपण। बंधु निरूपण मतलब अपने कुटुंब के सदस्य है, इसीलिए हम उनको अपराध करें। ये कुटुंब कैसे, ये थोड़ी भक्ति है, मुझे पता है क्या करता था पहले, ये अभी बड़ी बड़ी प्रवचन दे रहा है, ये मुझे उपदेश दे रहा है। बंधु निरूपण मतलब फैमिली मेंबर्स को सर्वसाधारण व्यक्ति समझकर उनके लिए अपराध करना। ठीक है, घर में भी हम भले ही दीक्षित भक्त है, कोई जप करने वाले हैं, किसी ने एस्पायरिंग है, कोई दीक्षित है, कोई ब्राह्मण दीक्षित है, तो उनके प्रति भी हमें अपराध नहीं करना चाहिए। भले ही वो घर में है मगर दे आर ट्राइंग टू डेडिकेट, ट्राइंग टू सरेंडर देयर लाइफ टू देयर स्पिरिचुअल मास्टर श्रील प्रभुपाद एंड कृष्णा एट द एंड। तो इसलिए उनके प्रति भी अपराध करने से हमें बचना है। 9वां है प्रकाश निरूपण। प्रकाश निरूपण मतलब जो शुद्ध भक्त है, कौन? हमारे पूर्ववर्ती आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरुजन, बस और कोई शुद्ध भक्त नहीं। पूर्ववर्ती आचार्यों को ही शुद्ध भक्त मानना, और अभी के सिनारियों में कोई डिवोटी नहीं है, कोई शुद्ध हो ही नहीं सकता, ये समझना। पहले के तो आचार्य है ही सारे शुद्ध भक्त, रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, या भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी है, वो तो है ही, मगर वो सिर्फ शुद्ध भक्ति है, हम यहाँ अभी कोई नहीं है, ये समझना अपराध है। इसीलिए ये अपराध से भी हमें बचने का प्रयास। 10वां है प्रखर निरूपण। प्रखर निरूपण मतलब ये समझना कि जो सिर्फ गुरु महाराज के साथ रहते हैं वही शुद्ध भक्त है। बस प्रभु जी, आप तो गुरु महाराज के साथ हैं, आप तो गुरु महाराज के साथ हमेशा रहते हैं, मगर श्रील प्रभुपाद जी कहे सिर्फ शारीरिक रहने से उपयुक्त नहीं है, उनकी वाणी की सेवा भी करना महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कहे मेरे इतने सारे गुरु भाई थे जो गुरु महाराज के साथ रहते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ, और क्या करते थे? उनका खून चूसते थे। जैसे बेड बग होता है ना, राजा के गोदी में बैठकर राजा का ही खून पीता है। मैं, प्रभुपाद जी कहे, मगर मैं मेरे गुरु महाराज से कभी अलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं सदैव उनके आदेशों का पालन करते रहा। I was always trying to please my spiritual master by following his instructions given. तो वो हो गया प्रखर निरूपण। 11वां है वर्तन निरूपण। वर्तन निरूपण मतलब जैसे भगवान के भक्तों के व्यवसाय के अनुसार उनसे हम भक्ति को तोलने का प्रयास करना। अरे हेड पुजारी ये शुद्ध भक्त है, अरे डायरेक्ट हेड कुक है ये शुद्ध भक्त है, अरे इनका व्यापार बड़ा है ये शुद्ध भक्त है। उनके कार्यों के द्वारा, समझ में है? ये सिर्फ हेड पुजारी ही शुद्ध भक्त हो सकते हैं। अरे मंदिर के प्रेसिडेंट है ये शुद्ध भक्त है, अरे जीबीसी है ये शुद्ध भक्त है। नहीं, देयर आर द ओनली पोजीशंस। वो पोजीशन से कभी शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। वो दी गई उनको जिम्मेदारियां, सेवाएं हैं, तो उन सेवाओं के द्वारा उनको भक्ति करने का कार्य अलग है, भक्ति अलग है और वो जिम्मेदारी अलग है। तो सिर्फ उनके व्यवसाय या व्यापार के द्वारा हम उनकी भक्ति माप नहीं सकते। और 12वां है दोष निरूपण। दोष निरूपण मतलब श्रीमद् भागवतम या अलग अलग जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में दिए गए जो उदाहरण हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना। अरे
ये पांच पांच पांडव थे, एक ही पत्नी थी, क्यों एक ही साथ शादी की? आपको क्या लेना देना? आपको एक है, उनको संभालो ना बस। उन्होंने 5 में से एक थी। अरे कृष्ण ने 16,108 रानियां की, आपको क्या करना है? आपको एक संभालते संभालते ही बस हो रहा है, फिर 16,108 की क्यों? अरे परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सांप कैसे डाल दिया गले में? परीक्षित महाराज तो पांडवों के अंतिम वंशज थे, अर्जुन के पुत्र थे, अभिमन्यु के, ऐसे कैसे कर सकते हो? ऐसे क्वेश्चन मार्क हमेशा हमारे जीवन में प्रश्न उठाना। जैसे अर्जुन तो बड़ा गांडीवधारी था, वो तो कहता है कि मैं हवा को भी नियंत्रण कर सकता हूँ, मगर वो गांडीव छोड़ के बैठ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये जो शास्त्रों के जो बड़े बड़े जो व्यक्तित्व है, उनके जीवन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, इसको कहा गया है दोष निरूपण। और इस प्रकार ये श्रीपाद रामानुजाचार्य ने 12 प्रकार के वैष्णव अपराध के विषय में कहा, जिससे हमें सदैव बचने का प्रयास करना चाहिए। अब ये नहीं कि सुने और हम दूर जाए, हमने सुनने के बाद इससे हम कभी भी विचलित न हो, या ऐसे अपराध हमसे एक दिन में तो नष्ट होने वाले नहीं है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, तो धैर्य से जब हम इन सारे अपराधों से बचने का प्रयास करेंगे तो धीरे 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 हम एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। और हमें पता तो होना चाहिए कि क्या है अपराध, इसीलिए हमने डिस्कस किया। अगर हमको पता ही नहीं है तो हम हंसी मजाक में भी अपराध करते रहेंगे। तो इसीलिए हमें जान लेना था कि अपराध क्या है। तो ये 12 प्रकार के वैष्णव अपराध श्रीपाद रामानुजाचार्य इसका वैष्णव पद्धति से इन्होंने वर्णन किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Anyone has any question, comment? Yes, प्रभु। मन वचन काया से सामने वाले को पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो वो वैष्णव अपराध है। काया, वाचा और मन, ये 3 आपने कहा। काया मतलब शरीर, वाचा मतलब हमारी वाणी, और मन मतलब मानसिक रूप से अपराध। ये 3 अलग अलग है, तीनों अपराध अलग अलग है। मानसिक अपराध मतलब मन में हम सोच रहे किसी के व्यक्ति बुरा या किसी के लिए गलत सोच रहे, मगर इतना ही है कलयुग के प्रभाव के कारण या कलयुग में वरदान है कि मानसिक अपराध को दंड नहीं है, मगर जो मन में है वो वाणी में, और वाणी में है वो कार्यों में आने में समय नहीं लगता। इसलिए मन में जब आता है तभी उसको नष्ट करना है। ये हो गया मानसिक अपराध। वाचिक मतलब बोल दिया सीधा। प्रभु जी आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं सीधा बोल देता हूँ, मैं डरता नहीं। दैट इज ऑल्सो ऑफेंस। लोगों को होती है ऐसी आदत, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं डरता नहीं, मैं सच बोल देता हूँ। अरे सच बोलते, मगर अच्छी बात है सच बोलना, मगर भगवान कहे सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। आप सत्य बोलो मगर मीठा बोलो, जो दूसरे के हृदय में काट न जाए उसका हृदय। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो मगर प्रेम से बोलो। ये हो गया वाचिक। और काया मतलब कर्मणः, डायरेक्ट। पहले मन में सोच रहे, मन में निंदा हो गई, मन में हमारा अहंकार, मन में गुस्सा हो गया, फिर हम बोल दिए तो ऐसा है वैसा है, फिर हमारा क्रोध अनावर हो जाता है, नियंत्रण नहीं होता, फिर हाथ उठने लगते हैं, तो फिर वो कर्मणा। मानसिक, वाचिक और कर्मणा तीनों, तो तीनों से भी हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। और विशेष रूप से कलयुग में मानसिक अपराध के लिए दंड नहीं है। इसका मतलब नहीं कि हम सबके प्रति करते रहे, क्योंकि जो मन में है वाणी पर आने के लिए ज्यादा समय उसको लगने वाला नहीं है, क्योंकि जिसका हम चिंतन करते बोल देते। हम सोचेंगे अरे इसने मुझे लास्ट टाइम 2 गुलाब जामुन दिए थे, सबको 4-4 दे रहा था। और जब हम सोचते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, जब हमारी सर्विंग सेवा होगी और गलती से प्लेट लेकर सामने आया तो बस एक्शन तुरंत हो जाएगी। तो जी एक ही चम्मच है, लिमिटेड। नेक्स्ट। Anyone else? प्रभु so आपने जो वो मानसिक अपराध का जो बोला है, so I was reading the Srimad Bhagavatam,
और you know like you said from time to time वो होता है कि you know कुछ प्रश्न आता है, but so are you saying कि जो अगर मन में ही प्रश्न आता है लेकिन आप किसी के कुछ बोलते नहीं है, तो to that extent it's kind of forgiven? यस। Okay, because you know when I'm reading कुछ ना कुछ तो question you know जैसे प्रभु जी का प्रश्न है कि हम मन में सोच रहे किसी के प्रति गलत विचार आया या मन में आते रहते गलत धारणाएं, तो जब तक हम बोलते नहीं तब तक उसको अपराध नहीं लगता क्या? यस, मगर उसको तुरंत हमें मन से निकाल देना चाहिए। तुरंत वो विचार भी हमें निकालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो मन में यदि रहा तो फिर धीरे 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 वो कभी भी वाणी पर आने के लिए तैयार है। तो इसलिए मन से यदि हम उसको दूर रखेंगे तो वाणी पर वो आएगा नहीं। वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ थिंकिंग ऑल्सो। थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग जो है वो फिर कार्य में भी तुरंत आने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरा डिलेमा ये था कि श्रीमद् भागवतम, अगर श्रीमद् भागवतम के ऊपर ही प्रश्न आए मन में तो वो अपराध हो जाता है ना इमीडिएटली। क्वेश्चन बोल रहे हैं, विचार नहीं बोल रहे। हाँ, तो प्रश्न था कि भागवतम के ऊपर ही प्रश्न आ जाता है तो क्या करें? तो ये उस समय हमें ये समझना चाहिए कि भागवतम का जो 2-4 उदाहरण से हम समझ सकते हैं, उसको कहा गया है दैव योगेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल वैकुंठ ये स्थान है जहाँ पर कोई कुंठ नहीं है, कष्ट नहीं है, द्वेष नहीं है, मगर वहां पर चतुष्कुमार गए और उनको जय विजय ने रोक दिया। तो प्रश्न आ सकता है ऐसे कैसे रोक दिया? तो वहां पर लिखा है दैव योगेन, भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि भगवान को उन दोनों को नीचे जमीन पर भेजना था और अपने वीर रस का आस्वादन करना था, शक्ति का। जैसे परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सर्प क्षमिक ऋषि के गले में डाल दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? पांडव तो इतने बड़े महान भक्त है। तो भगवान को द्वापार युग समाप्त करके कलयुग का प्रारंभ करना था और परीक्षित महाराज वो जस्ट इंस्ट्रूमेंटल वो सांप डालने के लिए। अगर वो सांप नहीं डालते तो फिर श्रृंगी ऋषि जो क्षमिक ऋषि के पुत्र थे वो श्राप नहीं देते, श्राप नहीं देते तो भागवत कथा नहीं होती, भागवत कथा नहीं होती तो हमें भागवत फिर मिलता नहीं, और आज हम भागवत कथा नहीं सुनते फिर। तो इसीलिए दैव योगेन मतलब कई कई चीजें भगवान की इच्छा से ही होती है, तो दैट शुड वी एक्सेप्ट। और इसीलिए एवरीवन नीड्स इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ अवर फैसिलिटेटर और काउंसलर और गाइड और फ्रेंड, जो भी आप नाम रखिए। मगर ऐसे कभी कभी 1-to-1 जब होते हैं, ऐसे कभी कभी सबके सामने हम पूछ नहीं सकते, तो 1-to-1 जब इंटरेक्शन होता है तो कोई सीनियर डिवोटी से हम जब काउंसलिंग लेते हैं तो हमारे सारे प्रश्नों का फिर उत्तर हमें सदैव हम बच के रह सकते हैं। यस Yeah, so thank you, Prabhuji. It's a very beautiful lecture and very inspiring. My question is, when we see that our kids they are not doing the things in the right way, then if we are scolding them, so is that also comes under the? जैसे करेक्टिंग अदर्स, हम दूसरे को सुधार सकते हैं, ये कला है। जैसे मैंने कहा नहीं कि आप बच्चे, मैंने ये कहा कि जब बच्चे गलती नहीं करते या बिना कारण, कुछ कारण है फिर भी हम डांटते रहते, दैट इज ऑफेंस। आपके पास अधिकार है, जैसे कोई भी करेक्टिंग अदर्स, अगर दूसरों को हमें सुधारना है या उनकी गलती सुधारनी है तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए हमारे पास अधिकार है क्या। जिसके पास अधिकार है उसको अधिकारी कहा जाता है। अधिकार है तो फिर आप माता पिता है, आप उसके गुरु है या उसके मित्र है, तो आपके पास अधिकार है उसकी गलती सुधारने के लिए। अगर आप उसके माता पिता नहीं है, गुरु नहीं है, आप मित्र नहीं है, किसी को भी आप डांटेंगे, दैट विल बी द ऑफेंस। अगर वो गलती कर रहा है, यू हैव टू, सोचना नहीं है, यू हैव टू। जैसे मराठी में कहा जाता है छड़ी लागे छम छम विद्या ये घम घम, मराठी में किसी से नाम रखा है। छड़ी मतलब हाथ जो मारते थे ना टीचर्स, तो जब तक वो मारेंगे नहीं तब तक वो विद्या आती नहीं। तो वही है, जब आपके पास अधिकार है, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, अगर बच्चे नहीं सुन रहे, अगर वो गलत दिशा में जा रहे, तो आप हैव द राइट टू स्कोल्ड देम। और अगर हम उनको सुधारने के लिए बोले और फिर भी वो नहीं करे, हम भी छोड़ दें, तो ऐसे केस में क्या होगा? हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, जितना हो सके उतना,
मगर यहाँ के नीति नियम और गवर्नमेंट का जो है वो तो इंडिया जैसे तो है नहीं तो तुरंत फिर पुलिस आ जाएगी आपके घर के सामने। मैंने सुना लंदन में एक डिवोटी मुझे शेयर कर रहे थे, ब्रो जो मेरे छोटे लड़के को मैंने डांटा, मैं बहुत गुस्से में था, ऑफिस का भी टेंशन था, घर में सुना ही नहीं दे रहा था, माँ से भी झगड़ रहा था, मैंने उसको डांटा तो तुरंत फोन किया, उसने पुलिस की गाड़ी आ गई घर के सामने। तो भारत में तो ऐसे नहीं होता, मगर यहाँ पर नीति नियम समझते हुए केस स्टडी 1 to 1 जैसे है। तो अगर फिर नहीं है तो लास्ट वी कैन प्रे टू द लॉर्ड ददामी बुद्धि योगम तम एनुमाम उपयांति ते, भगवान इनको अच्छी बुद्धि दीजिए जिससे वो आपकी शरण ग्रहण करे और अच्छी बुद्धि से वो पुनः सही लाइन पर वे वापस आ जाए। वही कर सकते। यस ब्रो। Someone goes to the Mayapur Dham, for example, ओके and it is said that unknowingly someone do aparadh, it is nullified. Is it true? I'm saying that's the case. Unknowingly. अननोइंगली, अच्छा। Like Mayapur Dham, गलती someone से says गलती that Mayapur Dham. जैसे मायापुर धाम को औदार्य धाम कहा गया है, औदार्य धाम, वहां पर गलती से यदि कुछ अपराध होता है तो चैतन्य महाप्रभु नहीं लेते, दैट्स ट्रू। मगर हमें ध्यान से, गलती से हो गया अनजाने में ठीक है, मगर हमें बार बार ऐसी अनजानगी नहीं करनी चाहिए। एवरी टाइम वी आर मेकिंग द मिस्टेक्स, दैट इज अ नॉट मिस्टेक, दैट इज अवर डिसीजन, दैट्स अवर डिसीजन, नॉट अ मिस्टेक। अगर बार बार अगर हम वही गलती कर रहे हैं तो गलती नहीं हो, वो डिसीजन हो जाता है। तो कभी अनजाने में किसी से अपराध हो गया या कुछ कारणवश अपराध हो गया तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, जगाई माधाई जैसे उन्होंने उद्धार किया। इसीलिए औदार्य धाम जो है मायापुर, वहाँ अपराध नहीं होते, मगर वृंदावन में ईच एंड एवरी अपराध काउंट्स, क्योंकि वहाँ पर श्रीमती राधा रानी का स्ट्रिक्ट ज्यूरिडिक्शन है, राधे वृंदावनेश्वरी। यस अगर अनजाने में अपराध हुआ, जैसे रूप गोस्वामी का उदाहरण दिया आपने, वहाँ तो सनातन गोस्वामी ने उनको बताया कि क्या करना है। अगर हमें नहीं पता कि हमारे से किसी के प्रति अपराध हो गया है तो कैसे उसको सुधार सकते हैं, तो कैसे उससे, अगर हमें पता है कि किस भक्त के प्रति अपराध हुआ है तो सबसे पहले उस भक्त के पास जाके अपराध की क्षमा मांगे, और भक्त वो है जो तुरंत कोई बिना सोचे अपराध क्षमा कर देगा। सेकंड, अगर हम उस भक्त के पास नहीं जा पाते, हमारा ईगो नहीं मान रहा है कि तुम जाओ और अपराध क्षमा मांगो, तो फिर इन दैट केस वी कैन टेक द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी। उनके जो मित्र है, अच्छे मित्र, उनको हम जाके मिल सकते। प्रोज आप थोड़ा बीच में आइए, आप थोड़ा मध्यस्थी बन के हम दोनों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है वो थोड़ा रिजॉल्व कर दीजिए। और तीसरा, अगर हमारे पास पता ही नहीं हमने किसके प्रति अपराध किया है तो फिर हम भगवान से प्रार्थना कर सकते, भगवान कि नोइंगली और अननोइंगली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रति अक्ष मतलब आंखों से देखकर, अप्रत्यक्ष मतलब उन्हें देखा नहीं, हमको बिना जाने हो गया अपराध, तो आप ही हमें सही मार्ग पर लाइए जिससे हम अपराध से बच सके। आई वॉज रीडिंग चैतन्य चरितामृत फ्यू मंथ्स बैक, और उसमें चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा का वर्णन है, साउथ इंडिया यात्रा चैतन्य महाप्रभु की, और इतना सुंदर चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने और श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। मैंने भी जब ये सुना और पढ़ा तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया था कि क्या चैतन्य महाप्रभु का मूड है। चैतन्य महाप्रभु जनवरी में संन्यास लिए, मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी जो मकर संक्रांति होती है, और संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु फरवरी में मायापुर से कटवा से जगन्नाथपुरी आए, और मार्च अप्रैल में चैतन्य महाप्रभु निकले दक्षिण भारत के लिए। और महाप्रभु ने सबसे पहला कहा, आई एम नॉट गोइंग ऑन द टूर, आई एम नॉट गोइंग फॉर द यात्रा, मैं मेरे पर्सनल काम के लिए जा रहा हूँ, मेरे बड़े भाई विश्वरूप उनको ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ, इसीलिए कोई भक्त मेरे साथ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप यदि आएंगे तो मुझे अलग अलग फैसिलिटीज देंगे, वो फैसिलिटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो आप दुखी हो जाएंगे। स्वरूप दामोदर मुझे डांटता है, मैं कुछ गलती करता हूँ तो फिर वो मुझे दुख लगता है। या आप जैसे भक्त है, आप तो मेरे स्वामी हैं, आप सभी मेरे प्रभु हैं,
कृपा करके मुझे आप अनुमति दीजिए, हाथ जोड़कर फ्रॉम ईच एंड एवरी डिवोटी चैतन्य महाप्रभु आस्किंग परमिशन टू गो फॉर साउथ इंडिया। बार बार तो भगवान होकर हमें सिखा रहे कि भक्तों के साथ हमारा कैसे रिलेशनशिप हो। तो फिर ऐसे परिस्थिति में भगवान को प्रार्थना कर से, भगवान सिर्फ आप ही है, मैं तो नहीं जानता कि किसी के प्रति अपराध यदि हुआ है, तो फिर यू कैन हेल्प मी टू रेक्टिफाई माई सेल्फ। हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद जी को हम प्रार्थना कर सकते हैं, देन दे विल हेल्प अस डेफिनेटली। यस माता जी। प्रभु जी, हम लोग एक राउंड चैंट कर सकते हैं अहमदाबाद में जो भी हुआ। यस यस यस, कल भी हमने कीर्तन किया पार्टिसिपेंट में उनके लिए। जैसे हमें पता चला कि कल भी रात को हमने अराउंड 15-20 मिनट्स वी डिड कीर्तन फॉर देम। जैसे माता जी ने याद दिलाया, कल जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से, वो बॉम्बे से निकली थी फ्लाइट, बॉम्बे टू अहमदाबाद, देन अहमदाबाद टू गेटविक निकल रहे थे। अराउंड 240 पैसेंजर्स, 242 प्लस 2 पायलट्स एंड 10 क्रू मेंबर्स, दे लेफ्ट देयर बॉडीज। और एक सबसे बड़ा हादसा भारत में हुआ, और सिर्फ 2 मिनट में, विद इन 2 मिनट्स 1:58 in the afternoon flight departed, 38 and 1:40 the plane crashed। तो इससे हम समझ सकते हैं हमारा गंतव्य जो डेस्टिनी है वो हमारे हाथ में नहीं है। कार एक्सीडेंट हो, ट्रेन एक्सीडेंट हो, फ्लाइट हो, हमारे लिए कभी वैकेशन नहीं है। इसलिए भगवान से हमें कभी दूर नहीं जाना है, कभी भी भगवान के भक्ति से वैकेशन नहीं है। देखिए भारत में जो जो हुआ है भगवान याद दिला रहे। जो वैकेशन के लिए गए कश्मीर घूमने, वहाँ आतंकवाद हुआ। फ्लाइट से घूमकर वैकेशन के लिए निकले, वहाँ प्लेन क्रैश हुआ, ट्रेन हादसे होते, कार एक्सीडेंट होता है। इसलिए भगवान के दूर जाने का कभी भी हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्ति में फॉर द डिवोटीज देयर इज नो वैकेशन फॉर चैंटिंग एंड फॉर द स्पिरिचुअल सर्विसेज। जैसे माता जी कहे, वी कैन चैंट 1 राउंड फॉर देम and we can conclude today's class. Thank you very much for all of your attendance in the big number. Our special thanks to our Simeshwar Prabhu and Mataji and Shri Shri Radha Madhav's house. They have invited all the devotees and especially they have hosted me. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। Thank you very much. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।